Good afternoon, everyone. I'm so sorry today I got late. I just Good overslept morning. today. I don't know why. I'm so sorry. It's okay. It's Good okay. morning. Good morning. Alethea, good morning. Good morning. All participants, good afternoon. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Auntie. Good morning, Alethea. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, so let's બધા start. પાર્ટિસિપન્ટ નો એ કરવાનું છે. Yes, introduction. આપણે what we will do is not today actually. Let's do it maybe because tomorrow I'm working 5 a.m. So we will be doing this weekend. We will be doing 6:45 a.m. So maybe we can take introduction of every participants at that time. So like me and Mummy and I, we were talking yesterday and गुड आफ्टरनून good afternoon रेखा. So हम लोग कल बात कर रहे थे कि इतने अच्छे हम लोग सब अभी घुल मिल गए हैं ना सब पार्टिसिपेंट्स. तो मम्मी बोल रहे थे कि लाइक सबका इंट्रोडक्शन करेंगे, एक अच्छी सी एक फ्रेंडशिप बिल्ड करेंगे. पता तो होना चाहिए कि कहाँ से है लोग, क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा यानी स्मॉल इंट्रोडक्शन. तो ये हम लोग कल करेंगे. ओके सो या आज तो ये पिक स्टेट प्रोग्रामिंग करते हैं अभी. लेट मी शेयर द स्क्रीन. આજે હું પરિમલ ગાર્ડન જઈ આવી, એકલી જઈને આવી. વાવ બ્રેકફાસ્ટ બી ત્યાં કરી આવી. wow amazing, that's what I wanted. હવે મમ્મીથી ઇન્સ્પાયર થઈને હું બી કંઈક ટ્રાય કરવાનું સોચી રહી છું. You should. Yeah, I encourage mom. I talked to her yesterday. That Yeah, we these go days I am go also with- very homesick. I hardly go out for anything, You most of the have to time. go So now- out no matter what. Yeah, that's very, very important for your personal growth. Very important that you spend some time with yourself. You do something that you like, you eat something that you like, whatever. આમ તો અમે જતા હતા જ એકલા બધી બાજુ, પણ હવે હમણાં ઘણા ટાઈમ થી મેં ઘરમાં જ થઈ ગઈ ને, જતી જ નહોતી એકલી. એટલે Yeah, હવે પાછું કાલથી સ્ટાર્ટ કર્યું કે હવે જવું. very nice. એટલા જોબમાં એકલા ફરતા હતા જ ને, ક્યાં કોઈ હા. પાસે આવતું હતું. Yes, yes. Okay, so could you all hear the music? I just played it for like a second. Yes, it was audible. Okay, so yeah, let's do it. I am the winner. We all are the winners. Okay, let's do it on other one. Left one.
Yes, I am the winner. We all are the winners. Okay, so yeah, जैसे मम्मी ने बोला आप सबको भी अपने आप के साथ जाना है, थोड़ा सा टाइम अपने खुद के साथ बिताना है, अच्छा फील होगा। कहीं पे शॉपिंग के लिए चले जाओ अगर आपको वो पसंद है, कहीं पे ऐसे ही कोई अच्छी जगह पे चले जाओ जहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना पसंद है, या फिर कोई अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ अपने खुद के साथ अकेले। तो ये बहुत ही अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और आप ऐसे लोग हैं जो बहुत घर में रहना पसंद करते हैं, तो बाहर निकलो बाहर, दुनिया देखो, बहुत ही अच्छी है, बहुत मजेदार है। तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलो। ओके, सो या, that's it. That's what I wanted to tell you all. So who would like to read today? Today's magical chapter, remember the magic. So yesterday we did magic mirror. So today we are going to do the yesterday's magic mirror. Yesterday's magic. Means जो भी आपका जैसे अभी यह दिन हुआ, आप आज लिखने वाले हो, या जब जैसे मेरी अभी ये सुबह हुई है, तो मैं अभी लिखूंगी जब भी ग्रेटिट्यूड, तो मुझे पूरा कल के दिन में स्कैन करके लिखना है कि क्या क्या अच्छा हुआ था। तो हम पढ़ेंगे अभी कि क्या बोलना चाह रहे हैं। एनी न्यू कमर वांट टू रीड? तो थोड़ी सी आमिना को भी छुट्टी मिलेगी। रेखा जी, हातिम, एनीबडी वुड Yes, लव? yes, if no one is there, I can read Aleph. Yeah. ओके ओके हातिम, वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सबको, ये इसमें पिक्चर में? सन मून का रिफ्लेक्शन है पानी के ऊपर, और मैजिकल स्पार्कल्स है सब जगह। यस यस, वो जैसे एक रोशनी है, इतनी बड़ी रोशनी है, मून के अंदर से निकल रही है, वैसे होती है रोशनी होता है। जैसे कल का मून बहुत ही प्यारा था। मैं कल ऐसे ही बाहर बैठी थी, मैं सनसेट के बाद ऐसे ही बैठती हूँ, या तो मैं अपनी बुक्स पढ़ती हूँ, या तो मेरा मेडिटेशन होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है। तो मैं कल बैठी थी, इतना जबरदस्त था मून, क्योंकि फुल मून आज है आई थिंक, पर कल भी मून बहुत ही प्यारा लग रहा था। इट वाज लाइक अ ऑरेंज मून। सो या, सो दिस वांट्स टू टेल यू दैट जितना भी टाइम आप वर्ल्ड में रहते हो, ये लाइफ में है, आप ये लाइफ लेके, ये बॉडी लेके आप ये लाइफ में आए हो, तब तक, जब तक आप यहाँ पे हो, मैजिक हमेशा आपके साथ होगा, क्योंकि आप उसी तरह से पैदा हुए हो। यू आर क्रिएटेड एज अ लव एंड लाइट। ऐसा हम भूल गए हैं, हम अपने खुद से दूर हो चुके हैं, जो हमारी ओरिजिनलिटी थी। वापस हम अपने अंदर देख के अपने खुद के पोटेंशियल को टैप करते हैं, अपने खुद के पोटेंशियल को, खुद के पावर को बाहर ला रहे हैं। और हम सबने देखा कि हम अगर ठान ले तो अंदर की पावर को या बाहर ला सकते हैं, मैजिक्स भी कर सकते हैं। आप सब लोगों ने ये तो देख लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही है हमेशा सब चीजों में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अपनी खुद की एक पावर को समझना कि हाँ, मेरे पास भी ये पावर है। जो भी वजह से हम भूल गए हैं, जो हमें नहीं पता है, हमारी कंडीशनिंग ऐसे हो गई, समाज ने कर दी, कहीं ना कहीं पे धर्म ने भी कर दी हमारी कंडीशनिंग। तो जो भी है, पर अब हम अपने ओरिजिनल की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ओरिजिनल की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने पावर्स को भी अनलीश करते जा रहे हैं। ओके, सो या, दैट्स व्हाट इट इज, द whole picture is about, like, now you continue to have the magic totally in your life. Okay, so let's read. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you.
Charles de Lind, writer and Celtic folk musician. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now, or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. तो अब तक तो आपने रोज रोज 10 अलग अलग नियामतें लिखी। अब ये प्रैक्टिस क्या बोल रही है कि आप अपने पिछले दिन, जैसे कि मेरा अभी यहाँ पे ये दिन स्टार्ट हुआ है, राइट? तो मेरा कल का जो दिन है, तो कल के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ था ये मुझे लिखना है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहे कि ये हमारे जो गुड थिंग्स हमके साथ होती है, जो भी अच्छी चीजें होती है, वो हमेशा डिफरेंट होगी और हमेशा चेंजिंग होगी। या मेरे साथ सेम ऐसी चीजें हैं अभी। एवरी डे इज डिफरेंट, समथिंग गुड हैपन एवरी डे, और पूरा चेंजिंग होता रहता है। तो आज की प्रैक्टिस आपको यही सिखा रही है कि कैसे आप अपने यस्टरडे में देख के पूरा दिन में क्या क्या अच्छी चीजें हुई, ये आज आपको लिखनी है। दैट्स इट। तो ये आपकी एक ऑन गोइंग प्रैक्टिस होगी। अगर आपने अब तक पूरे ब्लेसिंग्स लिखे, एवरी डे आपने कुछ नया ढूंढा, आपने बहुत शिद्दत से किया, 28 डेज कंप्लीट किया बिल्कुल, तो अब आप क्या कर सकते हो कि एवरी डे आप कंबाइन भी कर सकते हो अलग अलग प्रैक्टिस को। पर हम ऐसा नहीं करने वाले, एक्चुअली हम तो मैजिक बुक कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए ये डिजाइन किया कि अगर लोग बस मैजिक बुक 1 या 2 महीने करके छोड़ देंगे तो ये ऐसे अपनी ऑन गोइंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर हमारे लिए हम ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि हमें आत्मसात करना है, मैजिक बुक को बिल्कुल अंदर से उतार लेनी है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम तो ये प्रैक्टिस रोज करेंगे, पर यहाँ पे इसलिए इन्होंने बोला है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। You're on mute, Hatim, or are you like your network is gone? Oh, yes, I was on mute. Sorry. Okay. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. एक तो यहाँ पे वैसे भी हम रॉक प्रैक्टिस करते हैं, राइट? तो जब हम रॉक प्रैक्टिस करते तो ऑलरेडी वी स्कैन आवर डे, कि पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, वैसे भी हम स्कैन करते हैं पूरा दिन। तो या मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून में, इवनिंग में, रात को क्या क्या जो भी हुआ, जब तक आप बेड में गए तब तक क्या अच्छा हुआ, सब कुछ आप लिख सकते हैं इसमें। यानी आपको लिखना है एक्चुअली। ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर। You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Where is it? Did you receive a compliment, or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone?
A great conversation. a great conversation, or make plans for something you really want to do. यहाँ पे इन्होंने पूरा आपको पूरा एक रोड मैप जैसा दे दिया कि इतनी सारी चीजों में से कुछ भी आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछने अपने आप को भी कि एग्जैक्टली क्या अच्छा हुआ था मेरे साथ कल, तो आपको आपके आंसर अंदर से ही जब आप लिखने बैठते हो तो एक के बाद एक चीजें आपको खुद को याद आती जाएगी। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने इतनी सारी चीजें बताई कि क्या कोई अच्छी चीज आपके साथ गई, किसी ने आपको फोन किया, फ्रेंड ने फोन किया जिसके साथ आपने बहुत टाइम से बात नहीं की थी, या फिर आपको कोई अच्छे ग्रेट न्यूज मिले, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी मिला, कुछ भी हो सकता है। आपने किसी को मदद की, किसी ने आपको मदद कर दी। जैसे मेरा कल का दिन बहुत अच्छा था, मेरे बच्चों की मेरी दोनों फ्रेंड्स की बच्ची उनको यहाँ मेरे घर पे आना था, तो वो दोनों आई थी मारिया के साथ खेलने के लिए। उनको बहुत मजा आया और मैंने भी उनके साथ बहुत मजा किया, उनको लेके थोड़ा सा बाहर गई ये वो। तो यानी अब अगर मैं अपने दिन को कल को स्कैन करूँ तो मुझे मेरा दिन बहुत अच्छा था। तो कितनी सारी ऐसी चीजें थे कि जो मैं लिख सकती हूँ आज के जर्नल में। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Hatim, you're on mute, I guess, again. Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. तो जब तक आप अपना पूरा yesterday को स्कैन नहीं कर लेते, पूरा अपने आप को सेटिस्फाई नहीं फील करते, तब तक आपको रिकॉल करनी है ब्लेसिंग्स। कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी भी चीजें हो सकती है, बड़ी बड़ी। क्योंकि यहाँ पे एक बात समझना आप लोग कि आप क्या कर रहे हैं कि कुछ भी होता है अपनी लाइफ में, वहां से हमें पॉजिटिव ढूंढ ढूंढ के लाना है और इसको हमें हैबिट डालनी है, प्रैक्टिस में डालना है। तो जैसे हमने अभी तक 28 डे से तक हमने कुछ ना कुछ नया लिखा एवरी डे, तो वैसे ही अगर आप अब ये करोगे, ये प्रैक्टिस कि एवरी डे आपको जाना है पिछले दिन में और पूरा याद करना है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि वहां पे कुछ बुरी भी चीजें शायद हुई होगी, पर आपको उसको नहीं देखना है। आपको खाली अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढ के लाना है और लिखना है, जब तक आप पूरा फील नहीं करते कि हाँ मैंने सब कुछ कवर कर लिया। और इसमें क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस ट्रेन होगा कि उसको पॉजिटिव चीजें ढूंढ ढूंढ के लाने में वो खुद अच्छी तरह से ट्रेन हो जाएगा जब आप ये प्रैक्टिस बार बार करते हो। यानी कोई भी, अगर आप 10 नियामतें भी लिखते हो, अलग अलग रोज ढूंढते हो, अपने आप इनिशियली ऐसा होगा कि आप नहीं कुछ फाइंड कर पा रहे हो, पर जैसे जैसे आप करते जाते हो वो आपके लिए जैसे सेकंड नेचर बन जाता है, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर लिया ये चीज के लिए। ये बहुत समझना जरूरी है यहाँ पे कि कैसे आपको अपने सबकॉन्शियस में से ऐसी पॉजिटिव चीजें ढूंढ ढूंढ के निकाल के लानी है, अपने दिन में से, अपनी लाइफ में से, सब जगह पे से। ओके, सो या लेट्स सी। When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud in your mind or in your mind. You can make a quick list of the blessings or you can make a more detailed list. You can make a quick list of the blessings or you can make a more detailed list saying why you're grateful for each one. Yeah, you can read further. Continue. Yeah. There is no set of number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life
and your life will be abundant and magnificent. सो अभी आप क्या करोगे कि एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ इज अ ब्लेसिंग। तो आपको ये अपने सबकॉन्शियस में भी बिठाना है कि हाँ, मेरा पूरे दिन, जितने भी दिन होते हैं, पूरे ब्लेसिंग्स की तरह ही है। और आपको ये जो ट्रूथ है, जो आपको ऑलरेडी किसने मुझे बोला था, हाँ नहीं, एक्चुअली मैं कोई मूवी देख रही थी, तो नहीं, ओके, सॉरी, एक बुक रीड कर रही थी, तो उसमें उन्होंने पूरा ये दिया कि उनकी लाइफ कैसे मिजरेबल थी और कैसे उन्होंने एक दिन अचानक से ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, बहुत ही मतलब मिजरेबल। जैसे हम पावर बुक में पढ़ते हैं ना कि नेगेटिव में भी आप एक ही ऐसा होता है कि जहां तक आप जा सकते हो, उसके बाद तो आपको ऊपर ही आना होता है। तो जो ऑथर थे उन्होंने लिखा था यहाँ पे कि एक रात को अचानक से उठे तो इतना मिजरेबल अपनी लाइफ को फील कर रहे थे कि जैसे बस उनको एंड करनी है अपनी लाइफ, उतना इतना नीचे वो जा चुके थे नेगेटिविटी में। और तुरंत ही उनको सेल्फ रियल, पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अचानक से कोई अंदर से ऐसे आवाज आई और पूरी उनके लिए पूरी लाइफ ही बदल गई। तो जैसे ही वो दिन में उठे तो अपने आसपास की जो भी अच्छी चीजें थी वो देखने लगे, उनको अचानक से पीस फील होने लगा। तो ये सब चीजें हमारे लिए भी अवेलेबल है, पूरा मैजिक अपने आप अवेलेबल है, पूरे अपने आसपास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब तक क्या होता था कि हम अपने माइंड के इतने अंदर ट्रैप में फंस चुके थे कि माइंड की ये सब इमोशंस में, फीलिंग्स में इतने अंदर फंस चुके थे। हमेशा माइंड जो भी हमें कहानियां दिखाता था, हम उसको सुनते रहते थे। पर अब हमें पता चल गया कि ये माइंड हमें कुछ ना कुछ अलग चीजें दिखाता है, जबकि वो ट्रूथ नहीं है, वो सच्चाई है ही नहीं। तो जैसे जैसे आप अब खुद फील करने लगते हो कि हाँ, मेरे आसपास कितनी सारी अच्छाइयां हैं जो मैं पहले नहीं देखती थी, पर अब मैं देखती हूँ बिकॉज आई एम डूइंग दिस प्रैक्टिस। अब मुझे पता चल गया कि हाँ, मैं अलर्ट अगर रहती हूँ तो इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स है मेरे आसपास जो मैं काउंट कर सकती हूँ। तो ये आप सबने भी अभी ये महसूस किया होगा कहीं ना कहीं पे कि यार दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत मजा है लाइफ में। तो या योर लाइफ विल बी abundant and magnificent for sure. Okay, so yeah, let's read further. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic. It was created for you. Yeah, so this is the practice, remember the magic. तो जिसके पास भी gratitude है, they will be given more and more, and will have an abundance. तो जैसे आपका भी जो भी स्टेटस होगा, मुझे नहीं पता, सबका अलग अलग है, हमारी पूरी जर्नी अलग है। मेरे लिए कुछ मे बी धीरे धीरे आ सकता है, मुझे पेशेंस रखना है, किसी के लिए जल्दी आ सकता है। यानी हमारे खुद के लेयर्स भी तो अलग अलग है ना, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी अलग है, हमारी कंडीशनिंग भी अलग है, हमारा बिलीफ सिस्टम भी अलग है। सब कुछ हमारे एक एक जन के लिए पूरा पूरा अलग है चीजें। तो आपको यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये जर्नी पे रहेंगे, धीरे धीरे ऐसी ऐसी चीजें अनलिश होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ऐसी चीजें अनलिश होगी और पक्का आपकी लाइफ अबंडेंस से भर ही जाएगी जब ये मैजिक को आप कंटिन्यू करते हो, जब ये आप इतने अलर्ट रहते हो, माइंडफुल रहते हो, अपने माइंड को समझने लगते हो कि वो कैसे काम कर रहा है। और माइंड तो आपका ओनली 1% पार्ट ही होता है। जैसे आइंस्टाइन ने भी उसका ओनली 2-3% यूज किया था पूरा माइंड। पर जो भी हमारा जो मेन हमारा जो है एसेंस है हमारे लाइफ का, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम सोल भी बोलते हैं। तो जो ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो ही हमारी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को हमारे पास लाके रखता है। तो ये आपको बहुत समझने की जरूरी है यहाँ पे। सो या लेट्स रीड द मैजिक प्रैक्टिस नंबर 28. Remember the magic. Count your blessings.
Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. सो सेम करना है कि आपको ब्लेसिंग काउंट करना है और फिर ये प्रैक्टिस करनी है, रिमेम्बर द मैजिक, समझे? यानी वो काउंट तो करनी ही है ब्लेसिंग्स, तो जो आप नई नई एवरीडे ढूंढ के लिखते हैं वो तो करना ही है कल की प्रैक्टिस के लिए। और इसके लिए आपको ये भी फिर करना है कि यस्टरडे में क्या क्या अच्छा हुआ था। जैसे मम्मी अभी बात कर रहे थे कि उनका दिन बहुत ही अच्छा हुआ, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी आउटसाइड किया, परिमल गार्डन गए, घूमे, गार्डन में वॉक किया। तो ये कितनी अच्छी बात है, मतलब इतना एक नया एक नजरिया उनको मिल रहा है अभी लाइफ का कि हाँ मैं अपने खुद के साथ भी प्यार, खुद को भी प्यार करती हूँ, खुद की कंपनी एंजॉय करती हूँ जहां पे भी जाती हूँ। तो ये एक अलग नजरिया उनको मिला। मम्मी आपको कुछ यहाँ पे शेयर करना है? यस, काले एक पौना घंटा मैं अकेली बैठी घर में, बहुत अच्छा लगा। कुछ भी नहीं किया, फोन नहीं हाथ में लिया, किसी से बात भी नहीं की, अकेली बैठी रही पौने घंटा तक। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यस। सो ये आप सबको मैंने कल बोला था, किस किस ने ये किया कि अपने खुद के साथ बिना कुछ किए हुए, बिना फोन लिए, बिना टीवी देखे, अपने आप के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करना। किन लोगों ने ये किया था कल? किसी ने नहीं किया? नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। ओके। यानी मेरा कैसा है कि बच्चे वैसे जाते हैं ट्यूशन वगैरह में, तो मैं अकेली होती हूँ, लेकिन हाँ फोन तो यूज होता ही है मेरा। नहीं, ये आपको ये करना है, अपने आप के साथ ऐसे ही बैठना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। ये बहुत बड़ी चीज होती है, आपने सालों में नहीं की होगी कभी, एक यस, बार आई विल डू, करके। आई विल डेफिनेटली डू। यस। हातिम आपको कुछ बोलना है यहाँ पे? ज़ारा हो इधर में। अच्छा अच्छा, सारा बोलो। हाँ मेरी है ना मतलब बचपन से मतलब ऐसा बोल सकते हैं आदत है। आई स्पेंड सम टाइम लाइक 1 hour, सम टाइम 2 hours फॉर माई सेल्फ, वाओ, and it gives, that is my me time, and I just don't allow anyone to disturb me at that time, not even my kids, my husband, or anyone else in my family. wow, amazing. So you already have been practicing all this, like Yes. magic mirror, अपने मुझे खुद मालूम के भी नहीं साथ था कि ऐसा होता है कुछ, एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, बट दिस इज माय मी टाइम, और वो मैं बस आराम करती हूँ या फिर कुछ भी करती रहती हूँ जो मुझे पसंद है वो टाइम में। wow, that's amazing. Everybody should learn from you. So यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात हमें जानने को मिलती है कि चलो हम तो ये सब कर रहे हैं, पर जहरा को खुद को पता नहीं था कि वो ये सब क्यों करती है, पर तो भी उसको अच्छा लगता था, बिकॉज शी फेल्ट कि हाँ मेरा मी टाइम मेरे लिए जरूरी है, तो वो ऑलरेडी ये सब चीजें करती है, राइट? तो ये हम लोगों को भी यहाँ पे ज़ारा से सीखना है कि देखो कैसे ये सब चीजें कितनी जरूरी है कि मी टाइम होना चाहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुद को जो पसंद है वो चीजें करनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रेखा आपने किया? हाँ, सॉरी नहीं किया मैंने अच्छा मैंने अच्छा, नहीं किया। हाँ, सो आई ट्राई डूइंग आज या कभी आज टाइम करना मिला ट्राई। ओके, आज ट्राई आई करना ट्राई। या कुछ मेरा भी भी। वही है कि चिल्ड्रन आर अराउंड और कुछ ना कुछ काम रहता है तो होता नहीं है, बट आई ट्राई टू डू आई नो फॉर माई, आई हमें, वांट टू डू, इनफैक्ट या आई वांट टू डू, मे बट भी आई ट्राई टू। अपने बच्चों को किसी के पास ऐसे ही छोड़ के थोड़ा सा, जब ये आप अच्छा, अपने ट्राई करोगे ना तो आपको अपने आप रास्ते मिलेंगे। तो राइट ये राइट आपको वैसे अभी लगता होगा कि क्लोस्ट्रोफोबिक समटाइम्स लगता है कि हमारे पास कोई दूसरा वही ऑप्शन ही नहीं है, हमेशा राइट बस यही करना, बच्चों के साथ करना, ये जो भी। पर ये अपना करेक्ट, खुद का टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है, राइट। और जैसे आप अपने आप के साथ टाइम करोगे तो अपने बच्चों के साथ, अपने
फैमिली के साथ भी आपके रिश्ते और अच्छे अच्छे होते जाएंगे। होते जाएं। ओके, ये करती हूँ, सुबह उठते ही मिरर करती हूँ, वहाँ ही ये करती हूँ अपना what you do that Affirmation. run. No, अच्छा। affirmation also I do, but that State running programming? say, peak state programming I अरे do, वाह, facing, seeing the mirror. And Acha, one more thing I want to know, peak state programming is only done when you stand and do, or you can sit and do also? No, I only think you stand can and sit and do also, but if you stand, तो फिजियोलॉजी आपको मदद करती है। अच्छा, जैसे फिजियोलॉजी आपकी कैसी है, क्या आप रनिंग पोजीशन में है, तो माइंड को लगता है कि यह आप रन कर रहे हैं, ओके, इसलिए वो अलर्टनेस वाले जो हॉर्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो माइंड को भेजता है। ओके, इसके पीछे ये पूरा साइंस है। और Okay. आपका माइंड खुद आपको गामा फ्रीक्वेंसी में लेके जाता है फिजियोलॉजी की वजह से। वो आप वैसे भी कर सकते हो, अगर बैठ के भी शायद मुझे लगता है कि होगा, पर फिजियोलॉजी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्टली अगर आप खड़े रह के कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, थैंक्स, और थैंक यू। आज ये जरूर करना रेखा, आप Okay. अपने खुद के साथ टाइम जरूर स्पेंड करना, एटलीस्ट Okay, मे बी आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जो भी आप कर सकते हो। ओके, फाइन, I'll do that. बच्चे को हेलो। खेलने के लिए भेज देना, हाँ आंटी, बच्चे को खेलने के लिए भेज देना 1 घंटे ओके के लिए। आंटी, जाते हैं उन लोग खेलने के लिए, बट वो टाइम पे मेरा हस्बैंड रहते हैं, उनका हो जाता है वो वर्क फ्रॉम होम, तो फिर वो भी रहते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ बातचीत होता है, अलोन टाइम नहीं मिलता है, वही है प्रॉब्लम। बट आई हाँ, तो ट्राई आपके हस्बैंड को बोलना आज हाँ, कि आप भी मैं बाहर थोड़ा अपना मी टाइम लेती हूँ आई नो, या यस आई विल डू दैट, आज मैंने मौन रखा है, ऐसा बोलना। आई नो, बोलने का नहीं, आज मौन लिया है, करेक्ट, ऐसा यस बोलना। यस आंटी, यस श्योर, यस यस auntie is a great inspiration. Yeah, I'm she does very everything so, I very mean, impressed. religiously she does everything. Yeah, बहुत ही yes. हातिम, ज़ारा, आपको कुछ बोलना है? ये भी करती हूँ, और मेरे रिलीजियस का जो है वो भी परफेक्ट में करती हूँ। हाँ करना, very good auntie, very nice. Alifia, can I say something? Yes, yes, sure. मुझे बस यही बोलना था कि मी टाइम जो आप बोल रहे हो वो इतना अच्छा रहता है कि उससे मुझे इतनी एनर्जी मिलती है वो टाइम में, तो मैं सबका मतलब घर में सबका बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हूँ। वो जो मैं थोड़ा टाइम मेरे अपने आप के लिए ले लेती हूँ, तो फुल डे आई कैन वर्क फॉर माय फैमिली Yes. हैप्पीली, एक्चुअली हैप्पीली। Yeah, I totally agree with you. जब आप खुद हमेशा हैप्पी रहते हो, खुद अपने साथ टाइम स्पेंड करके अपने खुद के साथ जब आप खुश हो, तो डेफिनेटली उसका असर सब जगह पे होता है, सब जगह पे। सो आई टोटली एग्री विथ यू। मनीषा, आपको कुछ बोलना है? हेलो, हाँ અલિસા, રિયલી ગ્રેટફુલ સેશન ને મેજિક તો છે જ લાઈફમાં, બધી વસ્તુમાં આજે સવારે જ બહુ જ સરસ हिंदी મેજિક हिंदी, થયું यहाँ पे કે लोग हैं जिनको हिंदी ज्यादा समझ आएगी। नहीं, it's Okay, okay. sorry. I can understand Gujarati, but हाँ, नहीं 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 I नहीं can नहीं understand श्योर, because मेरी being in हिंदी भी बहुत Mumbai, अच्छी है। हमको मराठी हाँ। सब आता है, गुजराती भी समझ में आता है. You can carry on, no problem. डोंट वरी, मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है। रियल में आज सुबह जैसे मैं क्या है, सुबह मॉर्निंग में क्लास अटेंड करती हूँ, और उसके बाद आज जुम्बा क्लास गई थी। तो आज जुम्बा क्लास में ऐसा हुआ कि सुबह सोच के गई थी कि आज इसी गाने पे जुम्बा होने वाला है। वो मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल था जुम्बा और न्यू जुम्बा। रियली थैंकफुल कि आज का दिन इतना बढ़िया है, और अलिसा रियल में मैजिक बहुत अच्छा करवा रही है, और मेरी लाइफ में मैजिक बहुत अच्छे अच्छे हो भी रहे। इसके लिए रियली थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मनीषा। कुछ आप शेयर करोगे आपकी लाइफ में जो मैजिक हुए, मे बी जो भी छोटे है बड़े है जो भी है, थोड़ा सा शेयर करो जैसे यार। हाँ 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 श्योर। अभी मुझे थोड़े दिन पहले मतलब जैसे प्लानिंग सोच रही थी कि घूमने जाना है, जैसे मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ मेरे मदर फादर भी आ सके, और अचानक से मेरे मदर इन लॉ ने वो प्लानिंग बना लिया और हम लोग 2 दिन घूम के आए, जो बहुत ग्रेटफुल था। और मेरी मदर इन लॉ मतलब बहुत अच्छी है, और रियली में मेरी मदर इन लॉ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मैजिक है। रियली थैंक यू। और कोई मैजिक, क्योंकि आपने मेरे साथ फोन पे तो बात की, पर मेरे पार्टिसिपेंट को भी बताओ। श्योर श्योर, नेक्स्ट टाइम हाँ और होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छे बता रही हूँ। श्योर श्योर।
Okay. Thank you so Thank you, much, ma'am. Manisha, for coming up and sharing your magics. Thank you, and thank you, everyone. Thank you. Thank you. हम्म। मीता जी, आपने अपना मी टाइम किया कल? मीता जी शायद बिजी है अभी ग्रेस के अंदर। नहीं, सॉरी नहीं कर पाई थी मैम, टाइम नहीं मिला था। नहीं तो आपको अपने लिए टाइम निकालना है। जब आप ये ऐसा इंटेंशन बनाओगे तो अपने आप चीजें अरेंज हो जाएगी। जैसे हाँ, अभी करेंगे मनीषा आज। ने, हाँ मनीषा ने बोला कि उसको कोई पर्टिकुलर सॉन्ग पे डांस करना था, वो वैसा ही हुआ जुम्बा क्लास में। तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे मैजिक्स हो रहे। उसको कहीं पे घूमने जाना था अपने मम्मी पापा को लेके, अपने सास ससुर को लेके दोनों। तो उसने कुछ किया नहीं, सामने से ही उनकी मम्मी इन लोगों ने ही ये सब अरेंज कर दिया। तो यानी ऐसे चीजें होती है जब आप ये मैजिक बुक में आ जाते हो, रोज रोज चीजें करने लगते हो। मनीषा भी वैसे मेरी मम्मी जैसी है कि बहुत ही अच्छे से वो ये सब चीजें रोज रोज करती है। कितने टाइम से वो कर रही है, यानी 2-3 महीने हुए होंगे, मुझे पता नहीं। तो बाकी तो सब मैंने किया, पर मिरर वाला नहीं किया है अभी। अच्छा हाँ मुझे पता है आप भी बहुत अच्छे से सब ये प्रैक्टिस करते हो। पर हाँ, मिरर वाला भी करे, क्योंकि मिरर प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम सबके लिए खुद को प्यार करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, श्योर, टुडे आई विल डू। हाँ, मैजिक बुक तो करनी है ये मैजिक हेलो। बुक करने से सेल्फ लव के बारे में तो बहुत ही अच्छा पता चला, और काफी वर्कआउट भी कर रहे हैं। पहले कभी नहीं करते थे, सोचते ही नहीं था ये कुछ होता है, वो ही नहीं पता था। लेकिन पहले तो ये कंसेप्ट समझ में आया, फिर अभी करने लग रहे, धीरे धीरे कर रहे। स्पेशली मैंने आपको कई बार बताया कि मेरा तो सेल्फ लव जैसा कुछ था ही नहीं मोस्टली, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं कर रही हूँ उसके लिए भी। वेरी नाइस। सेल्फ लव करते हो तो आपको दूसरों और के लिए भी धीरे धीरे बहुत अच्छी अच्छा भी चीजें। लगता है, बहुत हाँ। अच्छा। या वो चीज बिल्कुल समझ में आ गई कि जब तक हम अंदर लव से नहीं भरे हुए थे तो किसी और को ज्यादा लव नहीं दे सकते। तो वो चीज बिल्कुल एकदम वो खरा सोना जैसी बात सही है कि जब तक हम पूरी तरह से लाइक फुल ऑफ लव नहीं है तो किसी और को नहीं इतना लव दे सकते। पहले क्या है कि हम ही सेटिस्फाइड नहीं होते तो हर किसी को इल ट्रीट कर देते थे, या बुरा भला बोलना वगैरह। बिहेवियर में काफी फर्क रहता था। अभी काफी बिहेवियर में काफी फर्क भी आ गया मेरे पर्सनल लेवल पे। वाओ, सो नाइस। आई एम सो हैप्पी फॉर I ऑल। feel better person. ગાર્ડન થી આવતા બધાને રોડ ઉપર કેટલા બધા સુતેલા જોયા ને એમને મેં મેજિક 10 બધાને આપ્યો. अरे वाह, वेरी नाइस। हातिम का रेज है अभी हैंड, जरा आपको कुछ बात करनी है? मनीषा, और कुछ बोलना है आपको? Guys, lower your hand if you don't want to. गाइस, Kind of मिरर वर्क भी बहुत बढ़िया है। हेलो हाँ हेलो। मैं सबको बताना चाहूंगी मिरर वर्क भी बहुत अच्छा है। मिरर वर्क से सेल्फ लव बहुत ही अच्छा होता है। रियल में मैं रोज करती हूँ मिरर वर्क ने। आई एम रियली ग्रेटफुल के पॉजिटिव थिंकिंग ने सब करे। मिरर वर्क तो रियली बेस्ट। उससे आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, आपको हर चीज में प्यार दिखेगा, क्योंकि लाइफ में सब चीज अच्छी होती है, लोग भी अच्छे होते हैं और एनी मोमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। यस। अमेजिंग मनीषा, थैंक यू डियर। तो मनीषा ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, हम लोग साथ में पढ़ते थे, और कुछ ना कुछ शी वाज आल्सो गोइंग थ्रू सम ordeal for some time, and I talked to her, I talked about magic book to her, and she started and everything. So that's how, and now she's the most happy girl I can see. Okay, so yeah, let's continue our reading. Olivia, just a minute. I'll need to leave and again join. There's some problem, I guess. I cannot hear you all actually.
Okay, no problem, no problem. So, who would like to read here? Amina, you continue. Yeah, okay. Thank you, Amina. Thank you always. My pleasure. And thank you, Hatim. He already is there. Or did he leave? Hatim, thank you so much for reading. Thank you. Yes. Okay. Thank you, Olivia. From second point. Yeah, from second. आप लोग सब बहुत Remember ही the अच्छा magic. रीड करते हो. हाँ, remember the magic. Yeah, thank you so much, Alicia. Hmm. Remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Number 3, as you remember each one, simply say the magic words, thank you for it in your mind. Fourth, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say, The magic words. Thank you. scroll up, please. Yeah, it's already been scrolled up. Say the magic words and Okay. thank you for the best thing that happened during the day. That's it. Yeah. Okay. ओके सो कल का Sure, हमारा ma'am. चैप्टर है मैजिकल फ्यूचर और आप आज सबको प्रैक्टिस समझ में आई ना जो आपको जो 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो लिखना है और उसके बाद ये लिखना है कल के दिन Remember का me. yesterday का देखना. हाँ यस्टरडे का पूरा स्कैन करके Okay. लिखना है कि क्या क्या अच्छी चीजें हुई कोई तो न्यूज वो तो हम जो लास्ट नाइट मैजिक रॉक में करते हैं वही Yeah, चीज हम दोहरा सकते हैं हाँ for this सेम practice. क्योंकि अच्छा है कि आप वो याद करते करते ही सो गए थे तो आपके लिए अभी लिखना एकदम इजी होगा सुबह सुबह में जब उठ के लिखोगे तो क्योंकि आपको ऑलरेडी याद होगी वो चीजें राइट How are you, Rehana auntie? You just joined. How is it going? The practice and everything? Okay, so यहाँ से हमें रीड करना था, right? Your senses are props too. So Amina, you can start it. Yes. Your senses are prop too. So use all your senses to help you feel that you have what you want. Feel the touch of what you want with your skin. Taste it, smell it, see it, and hear it. One man worked with all his senses to bring himself multiple job offers. He had applied for 75 positions over there over 3 years and had not received a single job offer. But then he used his imagination and all his senses to imagine he had his dream job. He imagined very detailed. He imagined very detailed Every detail. every detail in his new office. He touched the keys of his computer in his imagination. He smelled the lemon scent of the furniture polish on his new huge mahogany desk. He imagined his work colleagues. He gave them names. He had conversation with them. He had meetings with them. He even tasted the tacos at lunch breaks. 7 weeks later, he began receiving requests for interviews. Then requests for second interview poured in. Then he received not only one fantastic job offer, but two.
He accepted the job he loved the most. It was his dream job. तो Ready? यहाँ पे हाँ मैं ये समझाऊंगी पूरा। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि ये पर्सन जो था वो 75 पोजीशंस को अप्लाई कर चुका था, और उन 75 पोजीशंस के बाद भी 3 साल से वो जॉब ढूंढ रहा है। कैन यू बिलीव उसके माइंड की कंडीशनिंग अभी क्या हो गई होगी? वैसे देखने जाओ, अगर 3 साल तक आप कुछ कंटिन्यूसली करते हो और आपको कंटिन्यूसली फेलियर मिल रहा है, तो आपके लिए वो सोचना भी कितना डिफिकल्ट होगा, ये सब इमेजिन करना। तो भी उसको पता था कि अगर ये नहीं करेगा तो उसको जॉब नहीं मिलने वाली। तो उसने क्या किया, जैसे उसको पता चला कि हाँ मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे ऐसे काम करता है और मुझे ऐसे उसको यूज करना है, तो वैसे ही उसने क्या किया, 7 वीक्स तक कंटिन्यूसली उसने ये एवरी डे इमेजिन किया। उसके पूरे सेंसेस को भी उसने अंदर डाल दिया कि वहां पे वो एक तो नई ऑफिस में बैठा है, वहां पे अपनी टच सेंस को यूज किया कि वो कंप्यूटर को टच कर रहा है, कीज को टच कर रहा है, ये सब टच वो उसने इमेजिन किया। उसके बाद उसने क्या स्मेल किया, लेमन सेंस। तो जैसे कोई कोई फर्नीचर होती है ना, उसकी कोई पर्टिकुलर स्मेल होती है, तो उसने जो ये मेहोगनी का फर्नीचर डेस्क होगा जो एकदम नया नया होता है कभी कभी, तो उसकी अलग सेंट आती है, उसमें से अलग स्मेल आती है, तो उसने वो भी इमेजिन किया कि वो स्मेल कर रहा है। फिर उसने ये इमेजिन किया कि अपने सब कलीग्स के साथ बात कर रहा है, यानी उसने बोलने की भी शक्ति को इमेजिनेशन में शामिल कर दिया। फिर उसने ये भी इमेजिन किया कि सबके साथ सबको नाम दे दिए उसने, और सबके साथ बहुत ही हंस खुल के बात कर रहा है, कन्वर्सेशंस चल रही है, और लंच के टाइम पे वो टाकोस खा रहा है, वो भी उसने इमेजिन कर लिया कि टाकोस को टेस्ट भी करने लगा। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मुझे यहाँ टेस्ट आ रहा है। तो ये सब चीजें उसने रोज 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 इमेजिन की, पूरा सरेंडर कर दिया उसने अपने आप को। उसने फिर यहाँ पे कोई डाउट नहीं लिया कि भाई मुझे तो 3 साल से जॉब नहीं मिली है, मैंने तो इतनी बार अप्लाई किया है। जैसे हमारी तो कंडीशनिंग हो ही जाती है, 3 साल तक अगर कुछ होता है, लगातार फेलियर्स मिल रहे हैं, तो कंडीशनिंग माइंड की कैसी होगी कि मैं तो कुछ करने के लायक नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ये हूँ वो हूँ। अपने खुद के ऊपर भी डाउट होगा, और जो चीज हमें चाहिए उसके ऊपर भी डाउट होगा। पर यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी बात है कि चलो कुछ उसने क्या किया कि चलो 3 साल तो बीत गए, अब मुझे ज्यादा उसमें ड्वेल नहीं करना है जो भी था, पर अब अगर मुझे समझ में आया है तो मुझे क्या करना है, बस इमेजिनेशन, दैट्स इट। तो जैसे जैसे ये 7 वीक्स के बाद उसको इतने इतने अच्छे जॉब इंटरव्यूज आए, और 2-2 जॉब उसको मिल रही थी। अभी ऐसा पहले था कि उसके पास एक भी जॉब नहीं मिल रही थी, अब उसको ऐसी 2 जॉब मिली, और उसने चूज की जो उसको सबसे ज्यादा पसंद थी, और उसको बहुत, यानी इसके लिए वो ड्रीम जॉब थी। यानी यहाँ इमेजिनेशन ऐसे ही काम करता है जब आप अपने सबकॉन्शियस को कंप्लीटली ऐसा बिलीव करवा देते हो कि हाँ ये जो इनविजिबल रेलम में जो चीज है वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यूनिवर्स के लिए कोई छोटी चीज या बड़ी चीज नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हो। ये आपको बस, ये आपको बिलीव करना है, दैट्स इट। अब तक का हमें बिलीव ही नहीं होता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो या लेट्स रीड फर्दर। Know that when you have completed your part in the creation process, creation is done. You are no longer in the old world where you didn't have what you wanted. You have moved into a new world that contains the very thing you want, even if you can't see it yet. Know that you will receive it. सो यहाँ पे आपको एक समझना है कि जब आप अपना आगे अपना से सॉरी सो कृष्ण जब आप ये समझते हो कि आपने अपने क्रिएशन प्रोसेस में अपने आप का खुद का पार्ट करवा बजा मतलब अपना खुद का पार्ट कर लिया,
जो क्रिएशन प्रोसेस है, तो क्रिएशन डन हो चुका है, समझ लो। आपको फिर हाउ में जाना ही नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये मुझे मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये पूरा आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है। आपको उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है कि आपको ये कैसे मिलेगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट। तो ये जो पॉइंट्स ऑफ पावर है हम कल रीड करेंगे, और कल जैसे हमारा उसका भी आई थिंक लास्ट चैप्टर है मैजिक बुक का भी, रिमेम्बर द फ्यूचर। या और उन्होंने कल का एक्चुअली चैप्टर जो मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशन है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो कोई बात नहीं, हम साथ में ले लेंगे पूरा चैप्टर। ओके, सो please everybody remember we are meeting tomorrow at 6:45 a.m. yours 6:45 actually, mine it will be night tonight actually. So yeah, so please remember Saturday and Sunday only we are meeting at that time, and again from Monday onwards we will be meeting at 3 p.m. sorry आपको ये सब adjust करना पड़ता है, पर मेरा जॉब में ऐसा है कि किसी और को भी मैं ये नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी कलीग है वो टीपीएनस में काम करती है, टीपीएनस के लिए मैं काम नहीं करती हूँ। तो उसने बोला कि हाँ वो कर तो सकती है, पर टीपीएन का प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए फिर हम चेंज भी नहीं कर पाए। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब ये होता है, यानी नॉट अनफॉर्चुनेटली बट जो है वो एक्सेप्ट करना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। ओके, so each one of us is always working with the 3-year-old. Oh, that's we read yesterday. Okay. You cannot learn other people's lessons for them. They must do the work themselves, and they will do it when they are ready. So अभी कभी कभी आपको होता है कि मैं मेरे हस्बैंड को भी बोलूं ये करे, मेरे बच्चों को बोलूं ये करे, क्यों नहीं करते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ये भी लगता होगा, नहीं आप खुद को तो पहले बदल दो, आप खुद को पहले बदल दो, अपने आप चीजें बदलने लगेगी, किसी के ऊपर आपको काम नहीं करना है। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड ये बोलते हैं या ये करते हैं जो आपको लगता है कि यार उनको चेंज होना चाहिए, उनको ये कैसा, ये सब चीजें तो उनको नहीं करनी है, तो यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि उनकी जर्नी अलग है, आपकी अलग है, उनके लेसन्स अलग होंगे, उनकी खुद की एक्सपीरियंसेस अलग होंगे बचपन से, और उनके खुद का नजरिया अलग होगा लोग चीजों को देखने का। तो ये पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हाँ आप सबको बोलो कि देखो मैं ऐसी ये सब चीजें कर रही हूँ, मुझे इतना फायदा हो रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप किसी को बोलते हो कि कहीं पे ऐसा होता है कि वो भी अलाइन हो जाते हैं, कि वो भी ऐसी कोई चीज ढूंढ रहे हैं जिससे वो अपनी लाइफ को पूरा बदल सके, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाए। तो जहाँ आप बोलते हो तो बहुत फायदा होगा, पर किसी को जबरदस्ती नहीं करनी। अगर वो उनका थिंकिंग अलाइन नहीं है आपकी थिंकिंग के साथ, तो कोई बात नहीं, उनको अकेला छोड़ दो, जब उनका टाइम होगा वो खुद आ जाएंगे। तो ये बहुत समझना जरूरी है। हाँ, हम मैजिक बुक वापस करने वाले हैं, तो जितने लोगों को आप ला सकते हो लाओ, सबको बोलो कि एक बार ट्राई कर लो, यानी इफ इट अलाइंस विथ यू यू कैन कंटिन्यू, ऐसा बोल के भी किसी जिसको भी ये आपके ही हित में है, जितना आपकी वजह से अगर किसी की लाइफ थोड़ी सी भी चेंज होती है तो पता नहीं आपकी लाइफ में तो कितने मैजिक्स होंगे, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाँ, मैं यहाँ पे बोलूंगी आप सबको कि प्लीज लोगों को बताओ, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, अपने खुद के तक मत रखो, लोगों को भी बताओ, उनको भी मतलब उनके भी लिए अच्छा होगा अगर वो भी ये सब चीजें स्टार्ट करेंगे, तो उनको भी सेशंस में लेके आओ। ओके, सो टुडेज हार्ट थॉट इज आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। तो जैसे ही आप हम अभी ऐसा ही कर रहे, एक एक दिन में कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं। तो wouldn't it be wonderful if instead of having to memorize all those battle dates, children will taught how to think, how to love themselves, how to have good relationships, how to be wise parents,
how to handle money, and how to be healthy. Very few of us have been taught how to handle these different areas of our lives. If we knew, we would do it differently. तो जैसे अपने बच्चों की हम बात करते हैं कि उनको ये जो बैटल्स की डेट्स जो बताते हैं, उनको मेमोराइज करवाते हैं जबरदस्ती, और हिस्ट्री की जो डेट्स कि भाई ये डेट में ये हुआ था और ये हुआ था, इसकी बजाय अगर स्कूल्स में ये सिखाने लगे कि उनको कैसे अपने खुद को हैंडल करना है, अपने खुद के अंदर की दुनिया को कैसे हैंडल करना है, रिलेशनशिप्स को कैसे करना है, कैसे उनको आगे जाके अच्छे पेरेंट्स कैसे बनना है, मनी को कैसे हैंडल करना है, अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है, ये सब अगर सिखाते तो ज्यादा अच्छा होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे कोई भी अगर टीचर है या जो भी है, अगर आप पढ़ा रहे हो स्कूल में या जो भी आपका काम है, थोड़ा थोड़ा अपने जो भी अपने बच्चे हैं स्कूल के अंदर, उनको थोड़ी थोड़ी ये माइंडफुलनेस की चीजें हैं या थोड़ा आप सिखा सकते हो, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो अभी जो वो पढ़ते, इससे तो ऑफ कोर्स ज्यादा फायदा इसमें होगा कि वो ये सब अपने आप को प्यार करना सीखे, ये सब चीजें सीखे। तो हाँ, आप अगर आप टीचर है तो या आप ये बदलाव ला सकते हैं समाज के अंदर, बच्चों के भविष्य के अंदर, और उनको भी ये सब चीजें सिखा सकते हैं। टू बी ग्रेटफुल होना, ये भी आप उनको सिखा सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों में कैसे उनको हमेशा ही सेटिस्फाइड होना है, छोटी छोटी चीज। हाँ, ड्रीम्स हमेशा देखने हैं, ये भी आप सिखा सकते हो कि सपने बहुत बड़े बड़े देखने हैं, पर एट द एंड जो चीज हमारे पास है उसके लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है, ये सब चीजें आप सिखा सकते हैं। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सो लेट्स डू अवर क्विक मेडिटेशन. Let me bring my phone. Hold on, please. Not able to hear. Alifia. Sorry, I forgot that I muted. I'm so sorry. So मैं यही बोल रही थी कि आजकल मैंने ये स्टार्ट किया है कि सुबह के उठने के 1 घंटे के अंदर और रात को सोने से 1 घंटे पहले अपना जो भी वाईफाई है, कनेक्शन है, वो इसको एयरप्लेन मोड में रख दो, और आपका जो खुद का टाइम है, जो रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, फोन को हाथ में लेना ही नहीं है। ये मेरी भी बहुत ही बड़ी हैबिट थी। तो अब मैं ये मतलब अब मैं ये ला रही हूँ अपनी खुद की प्रैक्टिस में। तो मैं अपने फोन को एयरप्लेन मोड में रख देती हूँ। तो अगर मुझे कुछ रीड करना है, जैसे मेरे फोन में बहुत सारी बुक्स है, तो जैसे मैं कल भी रीड कर रही थी, तो फिर मैंने यही किया कि अपने फोन को एयरप्लेन मोड में रख के फिर मैंने रीडिंग चालू की।
तो जो फोन में नोटिफिकेशंस वो वगैरह सब आते रहते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो आप पूरा ही अपने जो टाइम है अपने आप को रीडिंग को दे सकते हो, या जो भी है आपको ये भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ मेरा बहुत सारा टाइम फोन के ऊपर जाता है, अभी ये सभी चल रहा है तो किसी न किसी से इसके रिलेटेड भी बात होती है। पर मुझे लगता है कि हाँ सभी चीजों का एक टाइम होना चाहिए, सभी चीजों को इतना ही टाइम दो जितना उसका जरूरी है। तो एटलीस्ट ये तो हम कर सकते हैं कि सुबह उठने के बाद 1 घंटा और रात को सोने से पहले 1 घंटा फोन को बिल्कुल साइलेंट कर दो, जो भी है फोन को देखना ही नहीं है। तो पता नहीं आप लोगों में से कोई लोग करते भी होंगे अभी, पर ये इनके लिए है जिनको फोन की पूरा बहुत मतलब होता है, फोन हमेशा ही साथ में होता है। ओके सो मेरा ये जो इंटरनेट बंद था जो मैंने अभी चालू किया, इसलिए In a world where data nerds rule comes an epic global event by engineers for engineers. और आपके कोई भी अच्छे आइडियाज हो ऐसा जैसे अभी मैंने ये शेयर किया, तो आप हमेशा यहाँ पे अपने दूसरे पार्टिसिपेंट को हेल्प करने के लिए शेयर कर सकते हैं ऑलवेज। ओके सो बिना झिझक किए। ओके सो सुनाई दे रहा है म्यूजिक? यस हाँ Perfect. Thank you so much. Okay, so let's close our eyes, back straight, hands on the left facing the heavens above. And let's start our deep breathing. Deep breathe in, hold, and release. Again, take a deep breath in. And release. Take a deep breath in. Hold. And release. Now focus on your breathing for few minutes. और थोड़ा सा अपना अटेंशन हार्ट की तरफ भी लेके जाओ और देखो कि क्या चल रहा है, आपकी हार्ट बीट क्या है, जस्ट ऑब्जर्व करो। ज्यादा है, कम है, कैसी है, ऐसे ही ऑब्जर्व करो। पूरा फोकस वहां पे लेके जाओ। अपने बॉडी को भी पूरा रिलैक्स कर दो, हेड फ्रॉम हेड टू टो पूरा रिलैक्स। तो जैसे ही आप अपने फोकस को लेके जाते हो धीरे धीरे पूरा रिलैक्स हो जाता है। Now let's imagine a golden light entering our forehead. गोल्डन लाइट जो फोरहेड में से एंटर हो रही है,
जो हमारे ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर और हमारे इवन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रवेश कर रही है और पूरा टॉक्सिसिटी को निकाल के अपने साथ वो गोल्डन लाइट सब चीजों को हील कर रही है। ब्रेन के अंदर पूरा हीलिंग कर रही है, सेल्स को रिपेयर कर रही है, रिजुवेनेट कर रही है। ये आपको इमेजिन करना है। जैसे कि पूरा फ्लश कर रही है, कुछ भी है, जो भी नेगेटिविटी है या जो भी इम्प्योरिटीज है, पूरा फ्लश करके एक एक सेल में से वो निकाल के अपने साथ लेके नीचे की ओर बढ़ रही है। अभी ये जो गोल्डन लाइट है, इसने हमारे फेस के ऊपर पूरा एंटर किया। हमारे जो अग्नि चक्र है वहां पे से पूरे हमारे जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाया, इसको स्ट्रेंथन किया और वो आगे बढ़ रही है। जो भी चीजें ऐसी जो हमारे बॉडी के लिए नहीं चाहिए, जो हमारे माइंड के लिए भी हमें नहीं चाहिए, वो सब चीजों को अपने साथ लेके और जो चीजें चाहिए उसको स्ट्रेंथन कर रही है। हमारे करेज को स्ट्रेंथन कर रही है, हमारी कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन कर रही है, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन को स्ट्रेंथन कर रही है। अभी ये गोल्डन लाइट नीचे की तरफ हमारे थ्रोट के अंदर से आगे बढ़ रही है। पूरे मसल्स को भी वो डिटॉक्स कर रही है। हमारे फूड पाइप को सब चीजों के अंदर से निकल के, पूरे ऑर्गन्स में से निकल के सभी चीजों को डिटॉक्सिफाई कर रही है। पूरा कचरा बाहर निकाल रही है। अभी इट्स मूविंग टुवर्ड्स द स्पाइन के अंदर, पूरे मसल्स के अंदर गोल्डन लाइट जा रही है। नाउ अभी वो आगे बढ़ के आपके चेस्ट के एरिया में से आपके हार्ट के अंदर गई। वहां पे से पूरी रोशनी की तरह बाहर दिख रही है, क्योंकि आपका जो दिल है वो एक्सपांड हो रहा है। अभी एवरी सिंगल डे इट्स एक्सपांडिंग अ लिटिल मोर। जो भी गुडनेस है वो ला रहा है, और जो भी उसके अंदर जो भी कचरा है, मतलब जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी थिंकिंग के अंदर जो भी चीजें नेगेटिव है, वो सब कुछ गोल्डन लाइट उसके साथ लेके जा रही है। नाउ इट्स मूविंग टुवर्ड्स योर स्टमक। हमारा जो सोलर प्लेक्सस है उसको स्ट्रेंथन कर रही है। हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने खुद के ऊपर खुद को ट्रस्ट करना, खुद को वैल्यू करना, खुद को रिस्पेक्ट करना, ये सब चीजों को वो स्ट्रेंथन कर रही है। And it's removing all the toxicity from all your cells from all the organs. Now it's moving toward your pelvic area, जहाँ पे आपका ये अपना स्वादिष्ठाना चक्र है। स्वादिष्ठाना चक्र को कंप्लीटली प्योरीफाई करके, उसको ओपन करके गोल्डन लाइट नीचे की ओर बढ़ रही है। नाउ जो हमारा जो रूट चक्र है उसको भी स्ट्रेंथन करें। हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी, हमारा प्रोटेक्शन, ये सब चीजों को स्ट्रेंथन कर रही है गोल्डन लाइट। प्यूरिफाई करके पूरा अपने साथ पूरी टॉक्सिसिटी और इम्प्योरिटीज को लेके वो आगे अभी थाइस की तरफ बढ़ रही है। Now it's moving towards knees, calf muscles,
feet, sole of the feet, अभी zup करके वो मदर अर्थ के अंदर चली गई, पूरा निकाल के। अब ये गोल्डन लाइट को ऐसे इमेजिन करो कि वो ऐसे सर्कल में घूम रही है, वापस एंटर होके वापस नीचे जाके सर्कल की तरह आपको कंप्लीटली प्यूरिफाई कर रही है। एक सर्कल आप देख सकते हैं गोल्डन लाइट का, पूरा सर्कल जो एक एक्चुअली आसमान की तरफ से आ रही है और नीचे जमीन में जा रही है, और आपको पूरी तरह से उसने स्ट्रेंथन कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया। I love myself. I accept myself the way I am. I value and trust myself. I respect myself. I'm connected to my inner wisdom. I'm guided by my inner wisdom, and I'm connected to my higher self. I'm always protected and universe has always my back. I trust the process of life and I'm always safe. All is well in my world. Okay, now let's rub your palms together. Invite the energy and now start blessing all your body parts from head to toe. All the five senses, face, your speaking, your mouth, your neck, spine, chest, heart, lungs, हमारे hands, fingers, toe, nails, पूरे बॉडी में स्टमक की तरफ आगे बढ़ते हुए सभी चीजों को ब्लेस करें। Thighs, knees, calf muscles, feet, sole of the feet. Thank you, thank you, thank you. All my trillions of cells, my body, all my organs, fibers, tissues, muscles. Thank you. All right, everyone. Thank you, Alivia. Thank you. Thank you so much for joining in. And remember, we are meeting 6:45. Thank you, dear. Thank you. Thank you. Namaste, everyone. So see you all tomorrow early morning, and love, light, and abundance to all of you. Bye. Bye. See you all. If you have put in a message also in group also this time. Yeah. If you can do it, you go ahead and do it. 6:45, no? Yeah, 6:45 a.m. And Only the for same link. tomorrow and day after tomorrow. For Yes. 2 days. For 2 days, Saturday and Sunday. Yes. No. Thank you so much, Amina. Thank you. Okay, thanks. Bye.